Good morning, dear students. Welcome to the physics class. Let's start our new topic, dear students, that is motion in a straight line. As we all know, dear students, in the last videos I have told you that what is mechanics? Mechanics is study of motion, and we have three branches of mechanics. First one is kinematics. First one is kinematics, second one is dynamics, and the third one is statics. These two, kinematics and dynamics, in class 11th. But about statics, we will read in higher classes, or you can say that when you are taking admission in colleges or university, mainly in engineering, you will read about statics. Fine, dear students. So let's discuss what are these branches. In these branches, what we will read and how we will do study. Our next unit it is kinematics. हमारी जो next unit है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है kinematics. So what is kinematics? Kinematics जैसे कि हमें पता है ब्रांच है मैकेनिक्स की जिसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे मोशन के. काइनेमेटिक्स में हम ये पढ़ते हैं मोशन हो रही है कौन सी मोशन है बट वी डोंट नो हम जानना भी नहीं चाहेंगे कि इसके पीछे का रीज़न क्या है ये जो मोशन जो हमारी हो रही है वाई इट हैपन्स what are the reasons behind it we don't know in kinematics for motion कि what type of motion happens we have two four parameters कि मोशन कौन सी हो रही है कैसे हो रही है उसके लिए हमें चार पैरामीटर्स की बेसिक फोर पैरामीटर्स हैं जो हमें पता होने चाहिए डेट आर डिस्प्लेसमेंट velocity acceleration and time we will discuss about these in detail in this chapter only in this video I will inform you about these in short form. For example, what is displacement? Displacement is movement in a given direction. How much movement is happening? Movement is happening or not? That is known as displacement. And what is velocity? Velocity is change in displacement. Third one is acceleration. Acceleration is change in velocity. We all know about these terms in we read about all these terms in class in ninth also. I hope you remember that in chapter motion we will read about these things distance and displacement, speed and velocity, acceleration, time. And what is time? Time is reference for change. And we can use the three terms to know about the fourth one. ठीक है अगर हमें तीन टर्म्स पता है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तो हम टाइम निकाल सकते हैं आपको डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और टाइम पता है तो आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन आई होप यू रिमेंबर आई in class ninth you will do it in detail the first equation of motion is v is equal to u plus at and the second one is s is equal to ut plus half h square and the third one is 2as is equal to v square minus u square by using these three from these three either one we use and we can find the one by using the three. Find dear students. Next, what are the examples of kinematics? Suppose I'm throwing a stone from here. ऊपर से तो हम इसके पीछे क्या क्या फाइंड आउट करेंगे काइनेमेटिक्स में काइनेमेटिक्स में हम देखेंगे कि जो स्टोन है कितना ट्रेवल कर रहा है क्या स्टोन की वेलोसिटी चेंज हो रही है अगर हो रही है तो कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है डियर स्टूडेंट्स और हम ये देखेंगे कि कितने टाइम के बाद हमारा जो स्टोन है वो ग्राउंड को हिट करता है ग्राउंड को हिट करने में वो कितना टाइम लेता है ये सब चीज़ें हम काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे हम काइनेमेटिक्स में ये नहीं पढ़ेंगे कि ये स्टोन नीचे क्यों गिरा जो हमें पता है डेट इज़ ड्यू टू ग्रेविटी बट वी डोंट वांट टू नो
about the reason of motion. Clear, dear students? So next is dynamics. What is dynamics, dear students? Dynamics वो पार्ट है हमारी मैकेनिक्स का वेयर वी स्टडी फोर्स एंड इट्स इफेक्ट्स ऑफ मोशन. डायनेमिक्स में पढ़ेंगे कि अगर हमने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया तो वो वहाँ मोशन हो रही है और उसका मोशन का क्या क्या इफेक्ट है, डियर स्टूडेंट्स. जनरली पीपल सोचते हैं कि अगर मोशन हो रही है, कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसे फोर्स चाहिए, जो एक्चुअल में ट्रू नहीं है. डियर स्टूडेंट्स, हम बहुत सारी चीज़ें साइंस में ऐसे पढ़ते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कि हम बहुत ज़्यादा जब नेचर को जानना चाहते हैं तो हम सपोज कर लेते हैं कि कोई चीज़ जैसे मूव कर रही है तो ज़रूर वहाँ उसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, बट ये ट्रू नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि आपको पता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन के फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं? A body will remain in its state. Either it is uniform motion, either it is rest. It will remain in its state until or unless we are applying any external force. जब तक हम कोई external force नहीं लगा रहे, वो बॉडी अपनी स्टेट में ही रहेगी. तो पीपल जो ये लोग सोचते हैं कि अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो उस पर फोर्स होगा, वो बिल्कुल खराब है, वो बिल्कुल रॉन्ग है. क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? एक बॉडी अपनी स्टेट में ही रहेगी, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहे. ठीक है डियर स्टूडेंट्स? हाँ, ये कह सकते हैं कि जब हम फोर्स लगता है बॉडी के ऊपर, जब कभी भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं बॉडी के ऊपर तो वहाँ वेलोसिटी में चेंज आता है. एंड इट विल प्रूव बाय Newton's second law also, that is F is equal to ma. Here we will take about change in momentum. By that we can say that by applying force we can change the velocity. Clear, dear students? Now the last one is statics. What is statics? Static is that part of mechanics where we deal with forces acting on a body at rest. स्टैटिक्स में हम उन चीज़ों से डील करते हैं जहाँ बॉडी के ऊपर फोर्स तो ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन वहाँ उस फोर्स का कोई भी एक्शन नहीं होगा. उस फोर्स की वजह से भी बॉडी किस में होगी? रेस्ट में. फॉर एग्जांपल, आप कोई वॉल ले लीजिए, ये वॉल है, इसके ऊपर अगर मैं फोर्स लगाती हूँ, अपने हाथ से मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रही हूँ, तो क्या ये वॉल मूव करेगी? नहीं ना. फोर्स तो अप्लाई हो रही है पर फिर भी ये मूव नहीं कर रही है, मोशन नहीं हो रही. डेट इज स्टैटिक्स. इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में आप क्लास 11th में ही पढ़ेंगे. एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पॉइंट ऑब्जेक्ट. वी विल डिस्कस दिस in the next lecture. Thank you, dear students. Have a nice day.